welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to discuss about 2.6, that is money, and 2.7, she walks in beauty. So let's start with the first poem, that is 2.6, money. Friends, this poem is written by William H. Davies. He was a Welsh poet and writer. He has spent his important time of his life as a tramp or hobo. After several years wandering life, finally he published his first volume, his first book of poetry, that is The Soul Destroyer and the Other Poem. Friends, the poem Money, what tells us? So ये poem हमें क्या बताती है? The poem Money tells us that money is not important. Though the title is money, but the message which poet has given us, that is money is not important. Relations, especially the poet says that friends are important than money. मतलब यहाँ पे उन्होंने सिंपली ये कहा है कि दो मनी इज रिक्वायर्ड बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेटम. We need money, that is the ultimate true, but money is not everything. Poet says that when he was rich, he had lot of friends, but they were not real. At the end of the poem, he says that now he is poor. He does not have money, but he has few friends. They are real friends. So the poem has in all 5 stanzas, and the poem having a rhyming scheme, proper rhyming scheme, that is A, B, C, B. So the poet has also used different type of figures of speeches such as apostrophe, repetition, then simile, antithesis, like this. So let's start line to line explanation of this poem. So here the first stanza, when I had money, oh, I knew no joy till I went poor, for many a false man as a friend came knocking all day at my door. So friends, the poem has a specific scheme. ये पोएम की एक प्रॉपर स्कीम हमें यहाँ पे दिखाई देती है. सो लेट्स राइट द स्कीम ऑफ दिस पोएम, दैट इज A, B, C, B. होप आपको ये किस तरीके से फाइंड करना है ये पता होगा. फिर भी देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट A से. पुअर फर्स्ट वाले लाइन से मैच नहीं करता है, इसीलिए नेक्स्ट अल्फ़ाबेट. देन फ्रेंड किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए नेक्स्ट अल्फ़ाबेट. डोअर एंड पुअर ये एक दूसरे को मैच करते हैं. पुअर को बी दिया था, इसलिए यहाँ पर भी हम बी देंगे. सो इस तरीके से हम एनी पोएम का राइमिंग स्कीम फाइंड कर सकते हैं. नाउ इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट he had lot of money because he is now rich. He has lot of money. उनके पास बहुत सारा पैसा है फ्रेंड्स. एंड हमें ये भी पता है यार कि पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है. तो पोएट को वही एक्सपीरियंस आया कि when he had money he knew no joy till he went poor, but he was not happy. When he was rich he was not happy. जब उनके पास बहुत सारा पैसा था तो उनके पास खुशी नहीं थी. he was not happy, वो खुश नहीं थे. अब दोस्तों कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है. देखो कि हम सोचते हैं कि पैसे आने से खुशी आ जाएगी, है ना. तो फ्रेंड्स, ये जो खुशी आती है पैसों से, इट इज़ टेम्पररी, इट इज़ अ फॉर व्हाइल. जो खुशी हमें अदर मीन्स से, जैसे कि आर्ट हो, चाहे स्किल हो, हाँ, या हमारी जो हॉबी हो, इससे जो खुशी हमें मिलती है दैट इज़ इटरनल, एंडलेस खुशी होती है. सो हियर पोएट सेज दैट व्हेन ही हैड मनी ही न्यू व्हाट इज जॉय. तो उन्हें पता नहीं था. व्हेन ही बिकम पुअर टिल आई वेंट पुअर, मतलब एज ही बिकम पुअर ही केम टू नो व्हाट इज जॉय और हैप्पीनेस. फॉर मेनी for many a false man as a friend came knocking all the day at my door. So when he was rich,
थ्रू आउट द डे मैनी फ्रेंड्स केम टू हिज हाउस. नॉक यानी कि यूज टू विजिट हिम. बट पोएट सेज दैट द फ्रेंड आर नॉट रियल फ्रेंड्स, दे आर फॉल्स. फॉल्स मतलब नॉट रियल, है ना, मतलब नॉट रियल. तो ये जो दोस्त थे उनके वो झूठे थे, यानी कि वो सारे के सारे पैसे के लिए इनके पास आते थे. दे एक्चुअली गेट जॉय ऑफ नॉट मीटिंग हिज फ्रेंड बट ऑफ हिज मनी. तो पैसों से उन्हें जो भी एंजॉय कर सकते थे उससे वो उनके तरफ अट्रैक्ट होते थे, वो दोस्त को मिलने को कभी नहीं आते थे. In the second stanza, he says that, then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dare not to speak to let this false world know. Now the poet says that his condition is like a child who has given a trumpet. Trumpet means a musical instrument. बच्चों के लिए एक ट्रम्पेट जैसा, यानी कि जिसे क्या कहेंगे हम, पिपानी जिसे कहते हैं मराठी में, हाँ, तो उस तरीके का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट. हाँ, ट्रम्पेट याद रखो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये. दिस इज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. इट इज़ विंड ब्लोइंग वाला इंस्ट्रूमेंट है. तो poet compare himself with a child who is given a trumpet, but also he order not to blow it. Actually जब छोटे बच्चे होते ना, उन्हें इस तरीके का ट्रम्पेट बजाना बहुत अच्छा लगता है. they get joy by blowing this type of instrument. लेकिन एक तरफ से उन्हें खुशी तो दी है, लेकिन कहा है कि एक्सप्रेस नहीं करना है. सो ही सेज दैट माई कंडीशन इज लाइक दैट चाइल्ड हु कैन नॉट ब्लो द ट्रम्पेट बिकॉज अ मैन इज डेड. आई डेयर नॉट टू स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो. एक्चुअली द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट he does not like to show off the society that he had money. He thinks that being poor we are happy. When we try to become rich we lost happiness. जब हम अमीर बन जाते हैं तो हमारी खुशी गरीब हो जाती है, और जब हम गरीब होते हैं तो हमारी खुशी बहुत अमीर हो जाती है. So now we discuss about the figures of speech, important figures of speech. In the first line we find money and money. देखो फ्रेंड्स, ये सेम वर्ड रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज रिपीटेशन. देन यहाँ पर देखिए ओ, ये वाला जो एड्रेसिंग वर्ड है ना, ये एक फिगर ऑफ स्पीच को इंडिकेट करता है, दैट इज अपॉस्ट्रफी. देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है. सो अगेन यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एक्सक्लेमेशन. बहुत सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है. देन आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे. केम नॉकिंग ऑल डे. फ्रेंड्स, दिन भर कोई दरवाज़ा नॉक कभी नहीं होता है ना. हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं लेकिन इंटरवल के बाद आते हैं, ऐसे कंटिन्यू नहीं आते. सो हियर दिस एग्जाम्पल इज ऑफ हाइपरबली. ये जो एग्जाम्पल है ये है हाइपरबली का. देन यहाँ पर देखिए फॉल्स मैन, ये एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का. बिकॉज मैन जो होता है ना वो ट्रू भी होता है, रियल भी होता है, या फिर रिच भी होता है, पुअर भी होता है, फॉल्स भी होता है. एक्चुअली द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन इज पास्ट, वो पास हो रही है. देन नेक्स्ट एग्जाम में देखेंगे हम, आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड. यहाँ पर देखिए ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ इन दीज टू लाइन्स, है ना, कंपैरिजन किया है. यहाँ पर देखिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड आ चुका है दोस्तों, लाइक. तो आप भी एक बार लाइक कर दो, शेयर करो, एंड
सब्सक्राइब कर दो। सो लाइक जहाँ कहीं भी होगा वहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच पक्का है, दैट इज सिमिले। सो हियर द पोएट, अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, यानी कि फाइंडिंग फिगर ऑफ स्पीच ये 1 मार्क के लिए आता है एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए और 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। सिमिली का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा कि द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ द चाइल्ड इम्प्लिसिटली, एंड यहाँ पर एक देखो देन फेल्ट आई, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये सीक्वेंस चेंज हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज इन वर्चन। सो द सीक्वेंस इज चेंज। आई फेल्ट, देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड हु that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead, I dared not speak to let this false world know. Again यहाँ पर देखिए false world का यूज़ किया गया है. So world is not false ना. So this is also an example of transfer epithet. फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड का भी यूज़ किया गया है. होप आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो पता होंगे. जैसे कि एक यहाँ पर देखिए फॉल्स है ना, मैन, एंड दूसरा यहाँ पे दिया है फॉल्स वर्ल्ड. सो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हमें 2 मार्क के लिए पूछा जाता है पोएटिक डिवाइस के ऊपर. एक तो स्कीम लिखो या डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखो, फिगर ऑफ स्पीच लिखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर एवर लाइट एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज about their work from morn till night. Now here the poet has observed the life of a poor family. एक गरीब इंसान की फैमिली का उन्होंने बहुत ही नज़दीक से ऑब्जर्वेशन किया है. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही केम टू अ कंक्लूजन. अपनी पूरी ज़िंदगी में, जैसे कि स्टार्टिंग में दोस्तों उन्होंने क्या किया है कि बस पैसा कमाया है, पैसा कमाते गए एंड उसके बाद उन्हें ऐसा पता चला कि ये जो सारी दुनिया है ये सब पैसों के पीछे भाग रही है, इंसानों की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं रहा है. सो देन ही रियलाइज दैट, व्हाट ही रियलाइज कि जो पुअर मैन है उनका हार्ट बहुत लाइट है. लाइट मतलब यहाँ पे उनका वे नहीं पूछा जा रहा है. लाइट मतलब यहाँ पर है हैप्पी. लाइट का मतलब यहाँ पे लिया गया है happy. So according to poet, what conclusion he found that poor man's heart is very happy, means poor people are happier than rich people. ये उन्हें यहाँ पे पता चला है. So he seen how poor man's heart are ever light and how their wives do hum like bees. Hum. Now this is humming, means singing a particular sound, creating a particular sound like bee about their work from morn till night. Morn till night means throughout the day. सवेरे से लेके शाम तक they actually sing about their husband's work. They talk about their husband. Maybe they complain about their husband. शायद पोएट को ये भी कहना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि in poor families, because of the lackness of money, often there is such type of quarrel. तो ये भी शायद पोएट को यहाँ पे मैसेज देना होगा कि how their wives do hum like bees about their work from morn till night. In the next line, so when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor man, think I need not go up so much as rich should come down. In the next stanza, the poet says that, so I hear these poor ones laugh. So what he thinks that, what he comes to know that poor people are always happier.
They are always happier in any situation, and see rich ones are coldly frown. Coldly frown means actually worried and unhappy. Worried and unhappy. तो यहाँ पे उन्होंने दोनों का कंपैरिजन क्या है कि पुअर जो है वो बहुत खुश है एंड रिच जो है वो बहुत टेंशन में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। पैसा कहाँ छुपाना है, इनकम टैक्स वाले, उसके बाद में ईडी वाले या चोर, हर एक तरफ से उन्हें टेंशन होता है। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप। नाउ इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट has given a message that poor are already happy, so they need not to be happier. Already they are happy, वो पहले से ही खुश है, अब उन्हें और खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए need not go up. ऊपर, go up means become rich. Go up here means become rich. तो उन्हें रीच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीच होने के बाद क्या होने वाला है, खुशी के लिए हम पैसे इकट्ठा करते होंगे, तो यार ऑलरेडी वी आर हैप्पी, सो व्हाई वी डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए पोएट कहते हैं कि ऑलरेडी पुअर आर हैप्पियर, सो नो नीड टू गो अप, बट ही सेज दैट rich who are unhappy they should come down. Come down मतलब नीचे आना, मतलब become poor, because rich want happiness, poor don't want happiness. जो गरीब है उन्हें खुशी ऑलरेडी है, they are happy. जो नाखुश है, अनहैप्पी है, उन्हें खुशी ढूंढनी होती है, इसलिए उनको यहाँ तक चल के आना होता है। They are needy, so they should come down. So in these stanzas we find कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिए गए। Much have I thought, देखिए सेंटेंस रीड करते ही हमें पता चल जाता है ना, सीक्वेंस चेंज हो चुका है। I have much thought of life, इस तरीके सेंटेंस होना चाहिए था। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन, एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर एवर लाइट। उसके बाद में देखिए ये वाला एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लाइक का यूज किया गया है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, वेरी गुड। एंड यहाँ पर देखिए हम ये जो वर्ड यूज है, दिस क्रिएट अ साउंड, साउंड क्रिएट करता है, चाहे तो आप भी करके देखिए, है ना, जब हम गाना गुनगुनाते हैं एंड उसके बोल नहीं पता होते तो इस तरीके से गाना हम गुनगुनाते हैं, एंड द सेम साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय बीज, जो हनी भी होती है, मधुमक्खियाँ, उनका भी आवाज़ उसी तरीके से आता है। सो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ऑनोमैटोपिया। ऑनोमैटोपिया, हम ये एग्जाम्पल है अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग और उसका है ये नाइट, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एंटीथेसिस। ओके, देन नेक्स्ट लाइन, व्हेन सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कॉल्डली फ्रॉन। अब यहाँ पर अगर ये दोनों सेंटेंस को हम एक कर देते हैं, सो हियर देखिए पुअर एंड रिच, लाफ एंड कॉल्डली फ्रॉन, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है ना, ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड्स है। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एंटीथेसिस। देन पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, यानी कि यहाँ पर भी सीक्वेंस चेंज किया है। सो ये है एग्जाम्पल इन्वर्जन का। एंड लास्ट, सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। अगर हम ये दोनों एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे तो गो अप डाउन या अप एंड डाउन, यहाँ पे हमें मिल जाता है एंटीथेसिस।
सो फ्रेंड्स, ये था ये पोएम के जो भी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है, इनका एक्सप्लेनेशन, एंटीथेसिस, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। सिमिली का तो हमने पहले देखा, सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहेगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो दोस्तों फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे ये सारे वीडियोस फ्री में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, फिगर ऑफ स्पीच सारा डिटेल्स में मिल जाएगा। दोस्तों फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे जाइए, वन शॉट भी मिलेंगे, डिटेल में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था मनी, ये पोएम का एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन फिगर ऑफ स्पीच, उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। लास्ट वाला स्टैंजा है दोस्तों, When I had money, money oh, अगेन जो फर्स्ट ओपनिंग स्टैंजा था उसी तरीके का ये स्टैंजा है। नाउ पोएट सेज दैट when I had money, my friend proved all untrue. But now I have no money, oh, my friend are real, though they are few. So the conclusion of his research, उन्होंने जो रिसर्च किया है दोस्तों, जो खोज की है, उसका रिजल्ट क्या आया है। सो ही कम्स टू नो दैट, द पोएट कम्स टू नो दैट when he was rich he had many friends but they all are untrue, not real. untrue मतलब झूठे हैं, यानी कि यहाँ पे उन्होंने वही टर्म यूज़ किया है, that is false. And he says that now he has no money, अब उनके पास पैसा नहीं है, but what he earned, he has such precious jewels like his friends though they are few. थोड़े हैं लेकिन सच्चे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ्रेंड करके रखना एंड एक भी टाइम पे काम में नहीं आएगा, तो ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं होते। फ्रेंड्स जो होते हैं, द फ्रेंड इन नीड और फ्रेंड इन डीड, तो मुसीबत में जो काम आ सकते हैं, जो हमारे साथ रहेंगे वही फ्रेंड है, चाहे वो कम भी रहे तो भी चलेगा। यही पोएट ने यहाँ पे कहा है। इन द लास्ट स्टैंजा हम देखेंगे इसका जो क्या कहेंगे स्कीम है लास्ट स्टैंजा की जो स्कीम है ये थोड़ी चेंज हो चुकी है, दैट इज A B, इस तरीके की इसकी स्कीम यहाँ पे हम देखते हैं। देन यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है अपॉस्ट्रफी का, देन उसके बाद में मनी अगेन यहाँ पर है रिपीटेशन, माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू, बट नाउ आई हैव नो मनी, ये भी एग्जाम्पल है अपॉस्ट्रफी का। अपॉस्ट्रफी के साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का भी मार्क है, जो सेम यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये था दोस्तों मनी, ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ फिगर ऑफ स्पीच। चलो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पोएम, दैट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी 2.7, जो लास्ट ईयर पेंडेमिक का सिचुएशन था इसलिए डिलीटेड सिलेबस में था, लेकिन इस साल हमें ये 100% सिलेबस होगा, तो हमें ये पोएम के बारे में भी स्टडी करना ज़रूरी है। शी वॉक्स इन अ ब्यूटी, फ्रेंड्स द पोएम शी वॉक्स इन अ ब्यूटी इज़ रिटन बाय जॉर्ज बायरन, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज लॉर्ड बायरन। तो ये लॉर्ड बायरन नाम से भी जाने जाते हैं। ही वॉज अ वेल्श पोएट, अ फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड अ सटायरिस्ट। तो ये एक फेमस रोमांटिक पोएट है। द पोएम्स विच ही कंपोज्ड आर रोमांटिक पोएम्स, ज़्यादा करके इन्होंने रोमांटिक पोएम्स को कंपोज किया है, लिखा है। स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, व्हेन ही वॉज अ स्कूलिंग चाइल्ड, ही स्पेंड हिज लॉट ऑफ टाइम बाय वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, मीन्स ही चेंज नंबर ऑफ स्कूल्स। सो बचपन से ही हमें पता चल जाता है, एक ही स्कूल में वो पढ़े नहीं है, घूमते रहे हैं। दैट्स वाई व्हेन ही वॉज 21 years old, he was on a tour of Europe and Orient, and after that he wrote
published his first volume, that is The Child Herald's Pilgrimage. ये इन्होंने अपना सबसे पहला पोएट्री कलेक्शन पब्लिश किया था। कब? जब वो 21 साल के थे एंड पूरी दुनिया घूम के आए थे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जैसा इन्होंने भी पूरा यूरोप घूम लिया था। उसके बाद में ओरिएंट यानी कि जो ईस्ट के तरफ के जो कंट्रीज़ है उनके लिए, हमारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है, तो इंडिया वगैरह ये उनके लिए ईस्टर्न कंट्रीज़ में आता है। तो ये कंट्रीज़ वो घूमने के बाद फिर उन्होंने अपना फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन पब्लिश किया, दैट इज़ चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज. Now about this poem, She Walks in a Beauty. Friends, the poem is nothing but the observation of beauty. Actually एक इंसिडेंस इनके लाइफ में ऐसा हुआ था कि once he attended a party and there he met with his friend's wife, and as he saw her he was astonished to see the pristine, the natural beauty. जब वो पार्टी में अपने दोस्त से मिले, उनके वाइफ से मिले, तो उनकी वाइफ इतनी सुंदर थी, तो वो सुंदरता देख के वो बहुत ही प्रभावित हो गए. एंड एज ही केम होम सडनली he wrote the poem, that is She Walks in Beauty. So here he doesn't disclose the name of that woman. वो उनका नाम पूरे पोएम में कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करते. What he disclose, what he share, that is the beauty. तो जो ब्यूटी उन्हें लगी थी. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात बताया जाता है कि द पोएट डजंट से ब्यूटी मीन्स द अपीयरेंस ब्यूटी. Actually, according to him, he tells about the beauty which is external as well as internal of her goodness, of her nature. उनका जो नेचर है वो भी वो ब्यूटी में कंसिडर करते. Often we define beauty as external appearance. तो हम एक्सटर्नल अपीयरेंस कोई भी चीज़ हो, है ना, तो उसका ब्यूटी या जो उसका ब्यूटीनेस है, खूबसूरता है, वो देखते जो दिखाई देता है वो हम बोलते हैं. लेकिन पोएट का ये कहना है कि मन की सुंदरता भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि आउटर एक्सपीरियंस अपीयरेंस होता है. सो हियर द पोएट कंपेयर द ब्यूटी ऑफ दैट वुमन विद द नाइट स्काइज. जो रात का जो समय है या आसमान है, इसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है. द पोएम हैज़ 3 बिग स्टैंजास ऑफ 6 लाइन्स. पोएम में एक स्पेसिफिक राइम स्कीम यूज़ की गई है, दैट इज़ ए बी ए बी ए बी. तो यहाँ पे 6 लाइन का ये स्टैंजा है एंड यहाँ पे जो स्कीम यूज़ की गई है दैट इज़ ए बी ए बी ए बी, यानी कि हर स्टैंजा में 3 पेयर है राइमिंग के. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट ने कुछ स्पेसिफिक फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज़ किए गए हैं, जैसे कि सिमिली का यूज़ यहाँ पे किया है, मेटाफर का यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है. तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ फिगर्स ऑफ स्पीच. सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लिम्स एंड स्टारी स्काइज, and all that is best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven a gaudy day denies. In the first stanza, the poet described the beauty of that woman. When he saw her, he expressed the beauty of that woman. What he says, उन्हें देखते ही क्या उन्होंने कंपैरिजन किया. शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लिम्स. क्लाउडलेस क्लिम्स, क्लिम्स का मतलब होता है दोस्तों क्लाइमेट, यानी कि जो रात का समय है ना. एंड स्टारी स्काइज, स्टारी मीन्स हैविंग लॉट्स ऑफ स्टार. चांदनी रात जो होती है ना, आपने भी कभी देखा होगा चांदनी रात, तो वो जो स्टार होते हैं ना ट्विंकलिंग, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं. सिमिलरली द पोएट सेज दैट द वुमन्स ब्यूटी
इज़ लाइक दैट स्काई, स्टारी स्काई, जो चांदनी रात है उसी तरीके की उनकी ब्यूटी है। एंड ऑल दैट इज़ बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट is also very beautiful. Maybe her black shiny hair and her fair face. तो ये सारा कॉम्बिनेशन वो ऑब्जर्व करते हैं. Meet her aspect and her eyes. Aspect means feature. तो उनके जो फीचर है, उनकी जो आंखें है, ये सारा जो ब्लेंड है ना दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग मेक्स हर वेरी ब्यूटीफुल, उसे वो बहुत खूबसूरत बनाता है. Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. mellowed का मतलब हो दोस्तों उसका क्या करना, उसका इंटेंसिफाई कम कर देना, यानी कि यहाँ पे उसे क्या करना, एक mellowed का मतलब देखिए यहाँ पे उसको डिक्रीज कर देना, लिखेंगे हम डिक्रीज कर देना, उसका जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसे कम कर देना. यानी कि नाइट का जो इंटेंसिटी है ना, टेंडर लाइट है, वो उसका ब्यूटी को कम कर देता है. विच हेवन द गॉडी डे डिनाइज. गॉडी का मतलब होता है दोस्तों ब्राइट. दिन की जो खूब ब्राइटनेस है ना, उसे वो डिनाई मतलब रिजेक्ट कर देता है. इतना ब्राइटनेस उनके चेहरे के ऊपर है. वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ impaired the nameless grace which waves in every raven trace, or softly lighten over her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear their dwelling place. Now here the poet describes her hair. अभी वो उनके हेयर्स के बारे में बताते हैं कि उनके हेयर्स जो है वो किस तरीके से है. waves in every raven trace. raven is a name of bird. raven जो है वो एक बर्ड है. which having shiny black feathers. तो उनके जो बाल है ना, ट्रेस का मतलब होता है लॉन्ग हेयर ऑफ वुमन, है ना. तो नो वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ impaired द नेमलेस ग्रेस. नेमलेस ग्रेस मीन्स दैट अननोन वुमन. तो उनका जो सुंदरता है वो सुंदरता किस वजह से बन रही है. सो वेव्स इन रेवन ट्रेस, उनके जो बाल है. हियर द पोएट सेज दैट हर हेयर्स आर ब्लैक एंड शाइनी. उनके जो बाल है वो ब्लैक एंड शाइनी है. किसके तरह? रेवन ट्रेस के तरह. रेवन इज अ नेम ऑफ बर्ड. क्रो फैमिली का बर्ड है दोस्तों. कौवा जो है ना, काला कौवा, वो काला कौवा के फैमिली के है. तो काला कौवा जो है उनके जो फीदर्स होते हैं वो बहुत ब्लैक होते हैं एंड वेरी शाइनी होते हैं. देन और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस. तो उनके जो बाल है चेहरे के ऊपर एकदम ब्लैक एंड शाइनी, बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं. वेयर थॉट सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस. एंड उनके माइंड जो है ना, तो उनके जो थॉट है सेरेनली मीन्स क्वाइटली, स्वीट एक्सप्रेस. तो उनके जो विचार है वो भी बहुत ही ज़्यादा शांत, यानी कि टेंडर या फिर सॉफ्ट है. हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस. हियर ड्वेलिंग प्लेस इज मेटाफोरिकली यूज. यहाँ पे ड्वेलिंग प्लेस का मतलब है दोस्तों उनका, हियर लिखेंगे हम, हियर उनका जो हार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह. अब वेयर थॉट लिव्स, हमारे विचार जो है, हमारी सोच कहाँ रहती है हमारे बॉडी में, तो वो रहती है हियर हार्ट के अंदर. हमारे दिल में अच्छे विचार होते हैं, है ना. तो पोएट सेज दैट उनके जो गुड थॉट्स है, अच्छे जो विचार है वो रहते हैं उनके हार्ट में. इसीलिए उनका जो नेचर है वो भी बहुत अच्छा बताया है.
अब यहाँ पे देखेंगे हम कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लिम्स एंड स्टारी स्काईज। तो एक लाइक आ चुका है, तो आप भी अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, सो लाइक जहाँ है वहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज सिमिली। देन यहाँ पर देखिए स्टारी स्काईज, एस एस आया है, तो यहाँ पे है alliteration. Then all that best of dark and bright, dark and bright ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। मीट हर एस्पेक्ट एंड हर आइज, यहाँ पर देखिए हर रिपीट हो रहा है, सो दिस इज रिपीटेशन, यानी कि हर लाइन में देखिए इतने आराम से फिगर ऑफ स्पीच मिल जाते हैं। गॉडी डे डिनाइज दस मेलो टू द टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि डिनाई करना ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन डिनाई किसे दिया गया है, डे, जो कि नॉन लिविंग है, इनएमनेट है। नेक्स्ट यहाँ पे वन शेड द मोर वन रे द लेस, वन रिपीट हो रहा है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। देन मोर एंड लेस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर है एंटीथेसिस। देन हैड हाफ एम्पायर्ड द नेमलेस ग्रेस, हैड हाफ ये एग्जाम्पल है अलिटरेशन का। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, रेवन ट्रेस ये एग्जाम्पल है दोस्तों रेवन ट्रेस वाला। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ metaphor. So softly lighten over her face, where thought serenely sweet express, alliteration. How pure, how dear their dwelling place. Dwelling place here again an example of metaphor, है ना। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा में जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच थे हर एक लाइन में देख लिए है। नेक्स्ट है हमारा अभी लास्ट वाला स्टैंजा, एंड ऑन दैट चीक एंड ओहर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम yet eloquent, the smile that win, the tint that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. So here the poet describes her smile. Her smile is very soft and calm, and her mind is at peace. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्माइल उनका किस तरीके से दिया है, तो स्माइल उनका दिया है सो सॉफ्ट एंड सो काम। ऑन दैट चिक, नाउ दीज आर द बॉडी पार्ट्स, चिक्स, ओहर दैट ब्रो, ब्रो मीन्स दिस पार्ट एंड ओहर दिस चिक। तो यहाँ पर दिया है शी स्माइल्स दैट, सो द स्माइल्स दैट विन, व्हेन शी स्माइल्स शी विन्स द हार्ट ऑफ अदर्स। वो इतना खूबसूरत हंसती है कि देखने वाला क्या कहेंगे हम, बहुत प्रभावित हो जाता है, मोहित हो जाता है। द टिंट दैट ग्लो, टिंट मतलब शेड, दैट ग्लो मतलब जो चमक होती है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, एक्चुअली द पोएट सेज दैट the smile on her face is the work she has done throughout the day. So जो काम अच्छे उन्होंने किए हैं, लोगों को हेल्प की होगी, लोगों से अच्छे से बात की गई होगी, वॉट एवर इट मे बी, वो जो है वो उन्हें ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। गुडनेस स्पेंट, तो अच्छाई में उन्होंने पूरा दिन स्पेंड किया है। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, उनका जो माइंड है वो बहुत पीसफुल है। पीस का मतलब होता है दोस्तों काम, यानी कि बहुत सेरीन, बहुत ही शांत। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट,
एंड शी इज़ सच अ इनोसेंट गर्ल। वो एक बहुत ही निष्पाप इंसान है, बहुत ही इनोसेंट है। अभी इनोसेंट को एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने उनका नेचर के बारे में कहा है। स्टार्टिंग में उनका आउटर एक्सपीरियंस कैसा है वो तो बताया, लेकिन ही सेज दैट नॉट ओनली आउटर एक्सपीरियंस बट ऑल्सो इनर गुडनेस मेक्स समवन ब्यूटीफुल। तो किसी को अगर हम ब्यूटीफुल कहेंगे तो उसके लिए हमें ये दोनों बातें देखना बहुत ज़रूरी है। ओनली आउटर एक्सपीरियंस डजंट टेल अस अबाउट समवन, मे बी दिखने में एक, अंदर से एक ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसके लिए पोएट कहते हैं कि ब्यूटी इज इक्वल टू आउटर एक्सपीरियंस प्लस इनर गुडनेस। तो ये छोटा फॉर्मूला यहाँ पे पोएट ने बताया। लास्ट स्टैंजा में देखिए अभी कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सो यहाँ पर देखिए दैट एंड दैट। सो ये एग्जाम्पल है रिपीटेशन का, है ना। देन अगेन रिपीटेशन, सो यहाँ पे देखिए ये भी रिपीटेशन का है, अलिट्रेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। द स्माइल दैट विन्स, अभी स्माइल जीतती नहीं है कभी, है ना। जीतना, विनिंग इज ह्यूमन क्वालिटी, लेकिन यहाँ पे स्माइल को दिया है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। बट टेल द डेज इन गुडनेस स्पेंट, अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। अभी ये दोनों जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल है सिनेक्डकी के। तो यहाँ पे माइंड का मतलब सिर्फ माइंड नहीं होता है, द होल स्ट्रक्चर, द होल ह्यूमन बॉडी। हार्ट जो है वो भी होल ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंट करता है। सो ये थे लास्ट के स्टैंजा में फिगर्स ऑफ स्पीच। तो होप दोस्तों 2.6 एंड 2.7 ये दोनों पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो पढ़ाई करो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। सभी के लिए मेरी बेस्ट कामना है। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।